السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ لوک سبھا انتخابات، لوک سبھا کی 88 سیٹوں پر ووٹنگ ختم۔ تریپورہ میں ووٹ کا فیصد سب سے زیادہ اور یو پی میں سب سے کم۔ بی جے پی کے آتے ہی یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا۔ کانگریس مسلم پرسنل لا لانا چاہتی ہے، امت شاہ کا بیان۔ کانگریس دھوکہ باز پارٹی، بی جے پی کا بھگوان کے نام پر ڈرامہ، کے سی آر کا بیان۔ ان اوقات میں لوگ ضروری کام سے ہی باہر نکلیں، حیدرآباد میں حکومت موسمیات کا بیان۔ تو خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لوک سبھا انتخابات، لوک سبھا کی 88 سیٹوں پر ووٹنگ ختم۔ تریپورہ میں ووٹ کا فیصد سب سے زیادہ اور یو پی میں سب سے کم۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج ملک کی 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کی 88 سیٹوں پر ووٹنگ کا عمل انجام پایا گیا۔ اس مرحلے میں راہل گاندھی اور ہیما مالنی سمیت کئی مشہور ہستیوں کا وقار داؤ پر ہے۔ شام 5 بجے تک کے اعداد و شمار کے مطابق تریپورہ منی پور میں سب سے زیادہ 77% اور 76% ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اتر پردیش میں سب سے کم 52% ووٹنگ ہوئی۔ انتخابی کمیشن کے مطابق شام 5 بجے تک آسام میں 70.66%، بہار میں 53.03%، چھتیس گڑھ میں 72.13%، جموں و کشمیر میں 66.22%، کرناٹک میں 63.90%، کیرالہ میں 63.97%، مدھیہ پردیش میں 54.83%، مہاراشٹر میں 53.51%، منی پور میں 76.06%، راجستھان میں 59.19%، تریپورہ میں 77.53%، اتر پردیش میں 52.74% اور مغربی بنگال میں 71.84% حق رائے درج ہوا۔ بی جے پی کی آتے یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا۔ کانگریس مسلم پرسنل لا لانا چاہتی ہے، امت شاہ کا بیان۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کانگریس کو اس کے منشور پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس ملک میں مسلم پرسنل لا لانا چاہتی ہے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی یکساں سول کوڈ یو سی سی لانا چاہتی ہے، اور اگر حکومت بنتی ہے تو پورے ملک میں یو سی سی نافذ کیا جائے گا۔ شاہ گونا پارلیمانی حلقے سے لوک سبھا امیدوار جیوتی رادتیہ سندھیا کی حمایت میں اشوک نگر ضلع کے منگولی کے پیرائی گاؤں میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھی موجود تھے۔ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کانگریس نے اسے 70 سال تک بچے کی طرح پالا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے ہٹا دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے منشور کو غور سے پڑھیں، وہ پرسنل لا کو دوبارہ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مسلم پرسنل لا لانا چاہتے ہیں، کیا ملک شریعت پر چل سکتا ہے؟ وہ 3 طلاق کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی خوشامد کرنے کے لیے جو چاہیں کرے، جب تک بی جے پی ہے ہم اس پرسنل لا کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ ملک یو سی سی کے ذریعے چلنے والا ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یو سی سی کو پورے ملک میں نافذ کریں گے، یہ مودی کی گارنٹی ہے۔ ان اوقات میں لوگ ضروری کام سے ہی باہر نکلیں، حیدرآباد محکمہ موسمیات کا بیان۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں تک بعض مقامات پر گرم ہوائیں چلیں گی۔ خشک موسم کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے جاری درجہ حرارت کے مقابل مزید 2 تا 3 ڈگری زائد درجہ حرارت درج ہونے کا امکان ہے۔ دوپہر کے وقت اعظم ترین درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ضروری کاموں کے سلسلے میں ہی محکمہ موسمیات نے شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس دوران یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا کہ اتوار کے دن ریاست کے بعض مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پہلے ریاست میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ضروری کام سے ہی دوپہر کے وقت باہر نکلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کئی مصروف ترین سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ حلقے میں نوجوان نے کلہاڑی مار کر توڑی ای وی ایم مشین۔ ناندیڑ لوک سبھا حلقے میں بلولی تعلقے کے رام تیرتھ کے پولنگ اسٹیشن میں آج
ایک واقعہ سامنے آیا جہاں ایک نوجوان نے کلہاڑی کے بٹ سے EVM مشین کو توڑ دیا۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ اس کا نام بھیا صاحب یتکے بتایا گیا ہے۔ ناندیڑ لوک سبھا حلقے میں ووٹنگ آج صبح 7 بجے پر آسانی سے شروع ہوئی، جہاں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹ ڈالنے کے لیے بے ساختہ رد عمل دیکھنے میں آیا۔ وہیں دوسری طرف بھیا صاحب یتکے برولی تعلقے کے رام تیرتھ کے ایک پولنگ اسٹیشن پر آج دوپہر 3:56 پر ووٹ ڈالنے گئے۔ اس بار اس نے سارے کام مکمل کیے۔ جب وہ ووٹنگ کے لیے EVM کے سامنے گیا تو یتکے نے اپنی پتلون کی جیب سے کلہاڑی کے بلیڈ سے EVM کو توڑ دیا۔ جیسے مشین ٹوٹ گئی، انتخابی عہدیداروں اور مرکز کے ایجنٹوں نے دیکھا کہ یتکے غصے میں ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ کر سب ڈرتے ڈرتے مرکز سے باہر نکل آئے۔ مرکز میں موجود پولیس اہلکاروں نے اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد یہاں نئی مشین لگا کر اگلا عمل شروع کر دیا گیا۔ اگرچہ کلہاڑی نے EVM مشین کو توڑ دیا لیکن اندر کا ڈیٹا متاثر نہیں ہوا۔ مرکز کے عہدیداروں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں دیر تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، تاہم پولیس نے سیکیورٹی بڑھا دی اور ووٹنگ کا عمل دوبارہ شروع کرایا گیا۔ نوٹا کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے پر انتخاب منسوخ کرنے کا مطالبہ، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جاری کیا نوٹس۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز اس مفاد عامہ عرضی پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا، جس میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا کہ نوٹا یعنی ان میں سے کوئی نہیں کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے پر انتخاب رد کیا جائے۔ اس عرضی میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اگر کسی سیٹ پر اس طرح کی حالت پیدا ہوتی ہے تو انتخابی حلقے میں ہوئے انتخاب کو رد کر وہاں نئے سرے سے انتخاب کرایا جائے۔ اس معاملے کی سماعت کے لیے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت والی 3 ججوں کی بینچ کے سامنے عرضی دہندہ شیو کھیڑا کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ گوپال شنکر نارائن پیش ہوئے۔ اس دوران انہوں نے عدالت سے کہا کہ صورت گجرات میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک ہی امیدوار تھا اور ایسے میں اسے فاتح قرار دے دیا گیا۔ اگر نوٹا کو بھی ایک امیدوار قرار دیا جاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ عدالت نے اس سلسلے میں نوٹس جاری کرے گی کیونکہ یہ معاملہ انتخابی عمل سے جڑا ہے۔ عرضی دہندہ کے ذریعے پیش وکیل کی دلیلوں کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ کانگریس دھوکہ باز پارٹی، BJP کا بھگوان کے نام پر ڈرامہ، KCR کا بیان۔ BRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے کانگریس کو دھوکہ باز پارٹی قرار دیا جس کا کام جھوٹے وعدے کرتے ہوئے عوام کا استحصال کرنا ہے۔ آج محبوب نگر جرچلہ انپلی گووندا میں پارٹی امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ریتو بھروسہ کے نام پر فی ایکڑ 15,000 روپے دیے جائیں گے، مگر اقتدار پر آنے کے 5 ماہ گزرنے کے باوجود 10,000 روپے بھی نہیں دیا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مستقبل میں ریتو بندھو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ KCR نے کہا کہ ملٹ سے کمیشن حاصل کرتے اناج کی خریداری میں الٹ پھیر کیا گیا، بونس کی قیمت کو بوگس کر دیا گیا، کلیانہ لکشمی کے ساتھ سونے دینے کے وعدے کو فراموش کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو کانگریس تباہ کر رہی ہے اور گزشتہ 10 سالوں میں BJP نے بھی ریاست کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ انہوں نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں تلنگانہ کو کچھ نہیں دیا گیا، پارلیمنٹ انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ KCR نے BJP اور کانگریس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ دونوں پارٹیوں نے تلنگانہ کو دھوکہ دیا اور بھگوان کے نام پر ڈرامہ کرتے ووٹ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ 29 اپریل کو وزیر اعظم مودی کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ایک عرضی جس میں بھگوان اور پوجا کے نام پر ووٹ مانگ کر ماڈل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا، جمعہ کو دہلی ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکی۔ اب اس معاملے کی سماعت 29 اپریل کو ہوگی۔ سماعت کرنے والے جج جسٹس سچن دتا کی عدم دستیابی کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم پر 6 سال تک الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کی جائے۔ درخواست وکیل آنند ایس جونڈھالے نے دائر کی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے 9 اپریل کو اتر پردیش میں اپنی تقریر میں ہندو اور سکھ گرو کے نام پر BJP کے لیے ووٹ مانگے۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں اپوزیشن کو مسلمانوں سے جوڑ کر مخاطب کیا۔ انتخابات میں مذہب کا استعمال عوامی نمائندگی ایکٹ کی سری خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کو 6 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ عرضی میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کی تقریر لوک سبھا انتخابات میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو وزیر اعظم کی تقریر کا نوٹس لے کر وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ ہریش راؤ مکتوب استعفیٰ کے ساتھ یادگار شہیداں پہنچ گئے، کیا چیف منسٹر کا انتظار؟ BRS قائد وسیر پیٹ کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے
आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते अपने मकतूब इस्तीफ़ा के साथ असेंबली के सामने यादगार शहीदा तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेवंत देवताओं के नाम पर कस्में खाकर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आवाम से किए गए वादों पर अमलावरी के लिए संजीदा है तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो गन पार्क आए। हरीश राव, साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव, एमएलएस कालेरू वेंकटेश, विवेकानंदा गौड़ और एमएलसी शंबीपुर राजू के साथ असेंबली के सामने गन पार्क पहुंचे। बादशाह उन्होंने शहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते उन्होंने कहा कि दोनों हरीश राव और चीफ मिनिस्टर के इस्तीफ़ा के कागजात दानिश्वरों के पास रखे जाए। अगर हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी और 6 ज़मानतों को 15 अगस्त तक नाफिज करती है तो वादे के मुताबिक अपना इस्तीफ़ा स्पीकर असेंबली के हवाले कर देंगे। हरीश राव का चैलेंज फजूल, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। रियासती वजीर आर&बी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीआरएस एमएलए हरीश राव पार्टी में क्लर्क हैं और राव की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज करना बेफैज़ है। जुमा के रोज़ यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि किसानों के 2 लाख रुपये के कर्ज माफ़ी वादे को नाफिज करने के लिए चीफ मिनिस्टर से सवाल करने का हरीश राव को कोई हक़ नहीं, क्योंकि वह सवाल करने के लिए मौजूद मौका कायम नहीं है। जबकि बीआरएस सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर रेवंत रेड्डी से इस मसले पर बात कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर वाकई हरीश राव किसानों के तय संजीदा हैं और असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने के लिए संजीदा हैं तो इन्हें हरीश राव स्पीकर के फॉर्मेट में मकतूब इस्तीफ़ा पेश करना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपये के खर्च को माफ़ करने के लिए पुरअज़्म है और हुकूमत दीगर वादों को रूबे अमल लाने के लिए भी तैयार है। हरीश राव ने यादगार शहीदा तेलंगाना पहुंचकर इसकी बुरहमती की। इनका चैलेंज बेकार है और इन्हें संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ये बात कही। मैं मुल्क में ही नहीं था, बृजभूषण सिंह की दलीलें कोर्ट ने की खारिज, जज ने कही ये बड़ी बात। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और WFI के साबिक सदर बृजभूषण सिंह को इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें ख़वातीन पहलवानों की तरफ से दायर जिनसी हरासानी के मामले में आगे की जांच का मुतालबा किया गया था। बृजभूषण सिंह ने दावा किया था कि वो वाक़े के दिन हिंदुस्तान में नहीं थे। अब 7 मई को राउस एवेन्यू कोर्ट अहम केस में इल्ज़ाम तय करने पर अपना फैसला सुना सकती है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण सिंह की दरख्वास्त पर समाअत की। बृजभूषण शरण सिंह ने मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किए जाने से कबल एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि वो वाक़े के वक्त हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे। अपने हक़ में उन्होंने अपना कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR पेश किया। इस्तदा की गई कि इस ज़ाविये से मज़ीद तफ्तीश की जाए। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से पूछा कि क्या मुलजिम की CDR काबिल एतमाद दस्तावेज़ है या नहीं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वह गैर मोतबर दस्तावेज़ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें नाबालिग पहलवान से मुताल्लिक़ केस को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई, क्योंकि इसके वालिद ने तफ्तीश के दरमियान ही ये चौंका देने वाला दावा किया था कि उन्होंने बदला लेने के लिए सिंह के खिलाफ जिनसी हरासनी के झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। हालांकि पहलवानों से जुड़े मामले की तहकीक़ात अभी जारी है। पुलिस ने सिंह के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट केस को ख़त्म करने की सिफारिश की थी, लेकिन 6 ख़वातीन पहलवानों की शिकायत पर दर्ज एक अलग केस में इनके खिलाफ जिनसी ज़्यादती और पीछा करने के इल्ज़ामात को बरकरार रखा। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से मुतालिक शिकायत को ये कहते हुए मनसूख करने की सिफारिश की थी कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सिंह ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। एलबी नगर मस्जिद मुस्तफ़ा पर पेट्रोल फेंकते हुए एक समाज दुश्मन अनसर पकड़ा गया। मज़कूरा मस्जिद पर पेट्रोल फेंकने का इसका मकसद क्या था मालूम नहीं। मस्जिद कमेटी के अरकान की तरफ से इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एलबी नगर को दी गई तहरीर शिकायत के बावजूद थाना सिटी में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मौके पर अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने एहतजाजी बयान जारी करते कहा कि अब कोई भी नेशनल चैनल का रिपोर्टर ये खबर नहीं दिखाएगा और न ही ये ट्वीट करेगा। सोचिए, अगर ये हरकत किसी मंदिर में किसी मुसलमान ने की होती तो ये ऊपर वाले रिपोर्टर्स के ज़रिए प्राइम टाइम स्टोरी बन जाती। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नई दिल्ली और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से दरख्वास्त करता हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना और कमिश्नर ऑफ पुलिस रचकुंडा कमिश्नर से वजाहत और कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करें। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन MBT। कल जो है सुबह के अवलिन वक्तों में एलबी नगर में एक मस्जिद है, मस्जिद मुस्तफ़ा, वहाँ पर एक शरपसंद अनासिर मस्जिद में कुछ फेंकते हुए CCTV कैमरे में आया था और वो वीडियो वायरल होने के बाद में उस मस्जिद की कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद ताज साहब लाके जो है एक रिटर्न कंप्लेंट दी एलबी नगर में। उस वीडियो के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करके कल ही उसको गिरफ्तार किया गया
और कल से उसकी तहकीकात की जा रही है कि आया इसके पीछे और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो राजेंद्र नगर में रंजीत रेड्डी चेविल्ला पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रोड शो में हिस्सा लिया और आवाम से इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ శ్రీ మల్లికార్జున ఖర్గే గారు చేవెళ్ళ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఎన్నికల బరిలో దించితే వారిని ఆశీర్వదించడానికి వేలాదిగా మా ఆడపిల్లలు बीआरएस और बीजेपी मुशीराबाद अक़लियती मोर्चा लीडर ने एमएलए क्वार्टर आदर्श नगर में टीपीसीसी सिटी सदर अंजन कुमार यादव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शुमूलियत अख्तियार की। ये तमाम लीडर पिछले कई सालों से बीजेपी में काम कर रहे थे। अक़लियतों और मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के पार्टी लीडर में अचानक तब्दीलियाँ, इन लीडरान ने कांग्रेस पार्टी के काम के तौर पर पार्टी को तब्दील करने और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया है। सैयद मसूद बीजेपी रियासती नायब सदर अक़लियती मोर्चा, खरत अली बाबा बीजेपी के साबिक़ नायब सदर, मोहम्मद यासीन बीजेपी डिवीज़न अक़लियती मोर्चा, मिर्ज़ा शब्बीर बेग बीजेपी बीआरएस पार्टी, मोहम्मद अकबर अली डिवीज़न के नायब सदर, मोहम्मद एजाज हुसैन बीआरएस पार्टी, मोहम्मद एहतशामुद्दीन बीजेपी लीडरान, ये तमाम लीडर टीपीवाईसी के जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार यादव की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। तुम वोटिंग नको करो, कांग्रेस को तो इतना खुला सवाल ठोक रहा उन्हें, हाँ तुम्हारा रिजर्वेशन निकालता हूँ बोल के, और किसको डालना बोल के बोलूँ मैं, हाँ कांग्रेस को अब डाल के कांग्रेस राहुल गांधी इतना फिर रहा देश भर फिर के, नफरत छोड़ो, नफरत के बाराज में बाजार में मोहब्बत की दुकान, हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो बोल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नागालैंड से महाराष्ट्र तक फिर के आया। आप लोग भयकाऊ बादशाह फिरकावारी पार्टियों की बातें सुन के तुम इधर उधर वोटिंग नहीं करना बोल रहा मैं। बिल्कुल वोटिंग करे तो क्या होता, अचल फिसल जाता, कम जात चिढ़ जाता, वैसी हुआ ना अभी। सिटी सरो डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मोहरा ने चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा किया। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मोहरा आईपीएस ने डीसीपी साउथ जोन की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज चार मीनार मक्का मस्जिद में सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया और पुलिस से पुराने शहर में पुलिस बंदोबस्त की तफसीलात हासिल की। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने बंडलागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर एक बैनुल-अक़वामी स्मार्टफोन स्मगलिंग और छीनने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और 5 सूडानी शहरियों समेत 17 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया। हालिया दिनों में हैदराबाद शहर के कमिश्नरेट के दायरे अख्तियार में मोबाइल फ़ोन छीनने और चोरी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। इस बढ़ती हुई लानत को रोकने इन जराइम के अंदाज को समझने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुकम्मल तहक़ीक़ात की गई। इसके बाद ये पता चला कि शहर में एक बड़ा मुजरिमाना नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें मोबाइल फ़ोन छीनने वाले, इन चोरी शुदा सामान को वसूल करने वाले और ताजिर कौमी और बैनुल-अक़वामी दोनों शामिल है, जो इन सेलों को गैर क़ानूनी नक़ल हमल का कारोबार करते हैं। गैर क़ानूनी मुनाफे के लिए इन्हें मुल्क से बाहर फ़रोख्त करने के लिए फ़ोन, मज़ीद बरा मुतअद्दिद चोरी शुदा सेलफोन्स को भी ताक बाज़ारों में ख़त्म किया जा रहा है। उसके नतीजे में मोबाइल स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर जैसे पुर्ज़ेजात बाद में सारिफिन से असल कंपनी के नरखों के मुकाबले कीमत के एक हिस्से पर वसूल किए गए मौजूदा ख़राब मोबाइल्स के मुतबादिल हिस्सों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सिलसिले में 703 स्मार्टफोन्स और एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसकी मालियत 1,75,00,000 रुपये है। We know what to do, and be rest assured we are doing our job. Okay, అది ఇప్పుడు మీరు అన్న రెడ్ కార్నర్ నోటీస్, we will do that, but already చేసినట్టు పేపర్లో రాశారు। कांग्रेस के सीनियर कैद अरुणेश शर्मा पिंकी भाई की याद में भंडारे का इनेकाद। कांग्रेस के सीनियर कैद अनजहानी अरुणेश शर्मा उर्फ पिंकी भाई की तीसरी बरसी के मौके पर नई दिल्ली के मंडी रोड पर एक भंडारे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अनजहानी अरुणेश शर्मा के भाई राजेश शर्मा काले भाई ने इनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सैकड़ों गुरबा के मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया गया। अनजहानी अरुणेश शर्मा उर्फ पिंकी भाई का शुमार कांग्रेस के सीनियर कायदीन में होता था, जिन्होंने 1977 में संजय गांधी के साथ इमरजेंसी के मुश्किलात का सामना किया। अनजहानी तकरीबन 50 साल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और कांग्रेस के मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ जुड़े रहे। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर कायदीन ताजदार बाबर, सुभाष चोपड़ा, अजय माकिन, जेपी अग्रवाल और दूसरों के करीब रहने वालों में शुमार किया जाता था।
अरुण शर्मा और पिंकी भाई की तीसरी बरसी के मौके पर भंडारा और अन्य खराज अक़ीदत पेश करने वालों में मंजूर मलिक, अंसार अहमद, परवेज़, टीटू, हरी किशन चौहान, मसूद ज़िया, सतीश सीटी, राजेश शर्मा, मुनव्वर केबुल, सलीम रज़ा, अयूब, राजूपुरी, निक्यू अरोड़ा, इसाक भाई जी वगैरह शामिल थे। इटला राजेंद्र, जिन्होंने कोकटपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकला से मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से मैंने रंगारेड्डी, मल्काजगिरी कोर्ट और कोकटपल्ली कोर्ट में वकला से मुलाकात की और माशरे में अच्छे बुरे जानते हैं। उन वकला ने यही कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व सलामती, कौमी दिफा, अवाम की इज़्ज़त नफ्स और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास है। इन सब ने नरेंद्र मोदी को जिताने का फैसला किया। इनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर वोट देंगे। मैं इस पार्लिमानी हल्के से पिछले 23 सालों से वाकिफ़ हूँ। जिस तरह BRS पार्टी शराब पर यकीन रखती है, इस तरह कांग्रेस पार्टी भी शराब और पैसे पर यकीन रखते हुए इंतखाबात में आगे बढ़ रही। रेवंत रेड्डी बहुत से झूठे वादे कर रहे हैं जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। लोग जानते थे कि लोगों को धोखा दिया जाएगा, इसलिए लोग अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं। గత 3 రోజులుగా రంగారెడ్డి కోర్టు, మల్కాజ్గిరి కోర్టు, ఇవాళ కూకట్పల్లి కోర్టుకి మా అడ్వకేట్లని కలవడం రావడం జరిగింది. అడ్వకేట్లుగా, డాక్టర్లుగా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా, మేధావులుగా లక్షల మందితో సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి మంచేందో చెడేందో తర్కించేటువంటి శక్తివంతులు కాబట్టి ఇవాళ వీళ్ళు చెప్తే సమాజంలో हैदराबाद DCC के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर जुमा को हैदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर चादरघाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। चार मीनार हल्के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ और दीगर सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी तो ओल्ड सिटी को हमेशा एक घुसपैठिए की नज़र से देखी। आज ओल्ड सिटी के स्लम्स में इतने जितने प्रॉब्लम्स है, वो क्यों आज मोदी जी को ये नहीं नज़र आया कि यहाँ पे भी लोग हैं। हैदराबाद में खाली हिंदू और खाली मुसलमान नहीं रहते, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो बीजेपी जब ओल्ड सिटी को बोलती है तो सारे हमारे हिंदू भाई भी उसमें शामिल है। तो बीजेपी की सोच हिंदू और मुसलमान, बीजेपी के जो सोच है ये दोनों पे लागू हो रही। तो लिहाजा मेरी सारों से अपील है सबसे कि आप लोग अपनी तरह अपने अक़ल को इस्तेमाल करके सोचिए। ये कम्युनल पॉलिटिक्स से बाहर आइए, गुलामी से बाहर आइए। जो लोग आपके से मज़हब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप उनसे के बारे में सोचिए। आपका वोट आपके आने वाले मुस्तक़बिल को डिसाइड करेगा। हिंदुस्तान का फ्यूचर आपका पहले ये बोली, जिस दिन मैं मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फेंक दूंगी उस दिन सुकून में आऊँगी। हमारे लिए तो दूर है। कौन बीजेपी जाके मुसलमानों से वोट मांग रही है। आज तो मैं बीजेपी के सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनमार मल्लन्ना और TPCC इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर कपिल वाई दिलीप कुमार ने कोदंडाराम से खैर सगाली मुलाकात की। कोदंडाराम ने अपने तालिब इल्म मल्लन्ना को MLC इलेक्शन जीतने का आशीर्वाद दिया। TPCC के वर्किंग सदर साबिक MLA संगारेड्डी जगारेड्डी मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी के वजीर और लीडर से पूछा कि आपने पिछले 10 सालों में आवाम के लिए क्या किया है। बीजेपी हुकूमत के दौरान 1 लाख किसानों ने खुदकशी की, नौजवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं। बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और बहुत से लोग जानते हैं कि वो मुसलमानों और अक़लियतों के हुकूक़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान रोजगार के क्या किए हैं? देश में अभी तक 1 लाख किसान वो मर गए हैं, मगर आज तक किसी किसान का देश में कुछ हुआ इसने आज तक। वही राम अब दीजिए इज़हारुल्लाह को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।